Good morning, ma'am. Good morning. Children, cameras on, beta. Good morning. The cameras on, everyone. Sumit Yadav, can you hear me? Ma'am, I have some device problem, so that's why I'm not. Okay. Sumit Yadav, can you hear me? Good morning, ma'am. Good morning. Okay. How is Aman, Anushka doing? Vanshika doing? Good. Ma'am, today what we will do? Beta, we'll start with the geography chapter, climate. Okay, ma'am. Acha, we were doing worksheet, no? Half was done, half was left, no? Yes, ma'am. Okay. So let us do one thing. Let me give you just the introduction of the chapter, and then we'll continue with the worksheet. Will that be fine? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. Just give me a minute. You all can get your history notebooks and the geography books, right? Yes, ma'am. ये अश्विन यादव कौन है? Who is this Ashwin Aditya Yadav? Yadav. Beta Aditya, please open your cameras, children. Those who have no issues, please open your cameras. Agaz, Mohammed Agaz, can you hear me? Agaz, can you hear me? Maruf Ali? At least you can sit, no? Maruf? Do we have Nishchal in the class? Yes.
Do we have Shreyansh in the class? Do we have Shreyansh in the class? No, ma'am. Fine. चलिए, you got your books? Yes, ma'am. मैम ज्योग्राफी 1 और हिस्ट्री 1. Geography. ओके मैम. First the introduction for the chapter, right? And then we'll do the worksheet. Fine, class? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Okay. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, this chapter is not very new to you people. You all have, like, the concepts that we are going to read in this chapter. They are quite old topics in the sense in class 6, in class 7, you people have already done these topics, right? So we'll be revising them in this chapter so that you can understand what exactly this climate we are talking about is, right? Then why this is important, why we need to know about climate, right? If you remember class 7th, we read about the weather and the climate. What are the factors that are responsible for the weather and the climate? Then why the climate and weather are two different concepts, though they are talked about together, but then why they are different, right, class? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, We- ma'am. we will study about difference between climate and weather. We all know that climate and weather are two different terms, two different concepts that are, talked about or discussed about collectively. अगर हम अभी आपसे पूछे what is the weather outside, तो किसी के घर के बाहर धूप होगी, किसी के घर के बाहर एकदम क्लाउडी होगा, right? yes, ma'am. ऐसा ही तो है ना? Yes, ma'am. हाँ। यस मैम. और अगर हम पूछे क्लाइमेट किस तरीके का है इस समय, तो आप लोग बताओगे इस समय जो है मॉनसून का टाइम है और ह्यूमिड क्लाइमेट हो रहा है बहुत ज्यादा. क्या हो रहा है? Humid climate. ह्यूमिड क्लाइमेट. राइट? तो ये दो चीजें, these are completely different from each other, right? But then why we talk about them collectively? Because they are interrelated as well. How they are interrelated? See, when we talk of weather, we are actually talking of the different conditions of the day, right? Like sometimes it is cloudy, sometimes it is, the sun shines brightly, sometimes it is windy, sometimes it is quite calm. So in a day's time period, there are different types of, weather conditions that we experience, but climate remains the same. And when the weather conditions remain the same for a continuous period of time, then we call that it is a climate of that particular place, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Then we will read that our country's climate. हम कहते हैं ना इंडिया एक मॉनसून कंट्री है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारे कंट्री का, कहते हैं ना हम. याद है क्लास 7 Yes, में पढ़ा ma'am. है ज्योग्राफी में हमने ये, Yes, ma'am. राइट? तो Yes, अब क्यों इंडिया को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंट्री कहा जाता है? ऐसा क्या फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. दूसरा, क्लाइमेट कंट्रोल्स. ये जो क्लाइमेट कंट्रोल्स जो होते हैं ना, किसी भी एरिया, किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, दोस फैक्टर्स वी आर गोइंग टू रीड. अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की. लैटिट्यूड क्या है, हमने पढ़ा हुआ है ना? यस मैम. ठीक है, ये जो लैटिट्यूड होता है हमने ये भी पढ़ा हुआ है बेटा. देखो, अगर आपको ध्यान हो
तो हमने पढ़ा हुआ है हीट जोन्स। क्या पढ़े हुए हैं हमने? हीट जोन्स पढ़े हैं हमने जूनियर क्लासेस में, पढ़े हैं ना। अब इन क्लास इन Yes, इस ma'am. हीट जोन में ये जो पोर्शन है जो कि ब्लू से शेड किया हुआ है, दैट इज टॉरिड जोन। ये वो जोन है जो कि इक्वेटर के पास है और यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। आप चाहो यहाँ पे सर्दियां आ जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वो एरिया है जो डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में रहता है। सन की डायरेक्ट रेज इस एरिया पे पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो विंटर्स हो, चाहे वो समर्स का टाइम हो, चाहे वो रेन्स का टाइम हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना, क्योंकि सन यहाँ पे से डायरेक्टली जो है शाइन करता है ऑन द इक्वेटर, और क्योंकि ये एरिया जो है इक्वेटर जो है सन के एकदम सामने पड़ता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल जो है खूब हीट ये एक्सपीरियंस करता है। राइट राइट। तो ये जो Yes, लैटिट्यूड ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, आपका इक्वेटोरियल जोन हो गया, आपका टेम्परेट जोन हो गया, आपका फ्रिजिड जोन हो गया, ये जो जोन्स हैं, इन जोन्स में भी अलग अलग तरीके से क्लाइमेट्स जो है वो होते हैं बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड। जो एरिया जितना ज्यादा इक्वेटर के पास रहेगा वहां पे उतनी ज्यादा गर्मी होगी, और जो एरिया जितना ज्यादा दूर होगा वहां पे उतनी ज्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। राइट राइट राइट। यस yes, ma'am. अब आप आ जाओ, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है जानते हैं ना ऋषभ? व्हाट इज एल्टीट्यूड? मैम बेटा बताओ बताओ। हाइट, यस। जब हम एल्टीट्यूड कहते हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दी हाइट, और किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो उसके एल्टीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है? अगर कोई जगह है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है और ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, जो जगह यहाँ पे होगी वहां पे क्या गर्मी एक्सपीरियंस कर पाएंगे वहां के लोग? No, ma'am. नो। उसका कारण क्या है कि जो सन की रेज हैं वो स्लैंटिंग पड़ रही है वहां पे, और वो इतना दूर है जिसकी वजह से इन स्लैंटिंग सनरेज का इम्पैक्ट जो है वो, जो हीट होती है, जो हॉटनेस होती है, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। रोशनी तो पहुंचती है, लाइट तो पहुंचती है, बट हीट नहीं पहुंच पाती है। एम आई क्लियर? जैसे Yes, एक आप ma'am. जैसे एक आप बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ते हो तो उसकी रोशनी आपको ज्यादा अच्छे से जो है आप ले पाते हो, और एक आप उससे जो है 2 किलोमीटर दूर हो, आपको लाइट तो दिख रही है, पर आपको जो नीचे आप अगर किताब खोल के खड़े हैं तो आपको ये क्लियर नहीं दिखेगा कि उसमें वर्ड्स क्या है। रीजन, लाइट तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट वो लाइट इतनी डिम और फेंट है कि आपको कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सेम इज द कंडीशन विद दी पोल्स। ये पोल्स जो होते हैं, पोल्स पे सन की लाइट तो पहुंचती है पर सन की हीट नहीं पहुंच पाती है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम ओके, नाउ कमिंग टू दी प्रेशर एंड विंड सिस्टम। आप लोग को याद है हम लोगों ने जो है प्रेशर सिस्टम एक करा था, और बेल्ट, परमानेंट प्रेशर बेल्ट और प्रेशर सिस्टम करा था, जिसमें इक्वेटोरियल हाई, इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल लो, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। याद है? याद है कि नहीं? यस मैम Yes, ma'am. यस। Anybody who can explain me this subtropical high and low? प्रेशर। हाँ जी, याद है कुछ प्रेशर बेल्ट और विंड्स? बेटा नहीं, किसी को याद नहीं है?
बेटा, नो वन रिमेम्बर्स? हाँ, Forward. No, ma'am. चलिए कोई नहीं, अभी हम आपको याद दिला देते हैं। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? Yes, ma'am. अब कुछ याद आया? देखो, इक्वेटोरियल लो बेल्ट, आपका सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, और ये जो बीच में जो आपको रेड एरोज दिख रहे हैं, ये वो विंड्स हैं जो कि परमानेंटली इन जगहों पे जनरेट होती Yes, रहती है। ma'am. अगर आपको याद हो, हमने विंड्स के टाइप्स पढ़े थे, प्लैनेटरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स, लोकल विंड्स, Wind current. याद है? हाँ। मैंने क्लास 7 में कराया था ना आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर। Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, wind currents. जी बेटा, Ma'am, wind currents. विंड करेंट्स नहीं, वो तो ओशन करेंट्स थी। विंड सिस्टम था एक, जिसमें कि विंड्स जो हैं, जो परमानेंटली कुछ विंड्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में जो है ब्लो करती रहती है। ये देखो, ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, ये अलग अलग हमारे एरियाज हैं, हीट जोन्स में जो डिवाइडेड हैं। उसके बाद इन एरियाज में जो ये प्रेशर बेल्ट्स वाले एरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद ये वो एरियाज है जहां पे विंड्स जो है परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट विंड्स होती है। अब ये परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? आपकी प्लैनेटरी विंड्स या परमानेंट विंड कहते हैं इनको। आपका ट्रेड विंड्स होती हैं, फिर आपकी वेस्टर्लीज होती हैं, आपकी ईस्टर्लीज होती हैं। जो पोलर रीजन में जो विंड्स जनरेट होती हैं, घूमती रहती हैं हमेशा 24/7, वो आपकी ईस्टर्लीज होती हैं। वेस्टर्लीज जो है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में होती हैं, और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में जो विंड्स होती हैं ये आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं। कुछ ध्यान आया? नो? ठीक है, तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स और जो आपका विंड सिस्टम है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो क्लाइमेट है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। राइट क्लास? Yes. चलिए, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी। आपने देखा होगा वो जगहें जो समुद्र से या किसी वाटर बॉडी जैसे सी या ओशन से दूर हैं, उन जगहों पे जो है आपका टेम्परेचर में एक्सट्रीम्स देखी जाती है। बहुत सर्दियों में बहुत ठंडा होगा, गर्मियों में बहुत गर्म होगा। बट जो प्लेसेस सी के क्लोज होती हैं, उन प्लेसेस में एक्सट्रीम्स नहीं होती हैं, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना तो बहुत ज्यादा ठंडा। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट। उसके बाद ओशन करंट्स पे आ जाओ। हमने ओशन करंट्स पढ़ी थी, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स पढ़ी थी ना? Yes. तो ये जो वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, ये जिन जगहों से गुजरती हैं, उन जगहों पे इन ओशन करंट्स के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर भी अप एंड डाउन होता है। जहां से कोल्ड करंट्स निकलती हैं वहां पे मौसम ठंडा होता है, जहां पे गर्म ओशन करंट्स मूव करती हैं वहां पे टेम्परेचर वार्म होता है। ठीक है? ठीक है? Yes, ma'am. उसका Yes, कारण ma'am. क्यों ऐसा क्यों होता है Yes, जानते हैं? ऐसा क्यों होता है जानते हैं? एनीबडी? Ma'am, please explain. मैं ये कह रही हूँ कि जो ओशन करंट्स होती है वार्म एंड कोल्ड, जब ये किसी जगह के पास से गुजरती हैं तो उन जगहों के टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती हैं। जैसे जो कोल्ड करंट्स होती है उसके ऊपर से जो विंड्स आती हैं वो ठंडी हवाएं लेके जाती हैं, तो वो एरिया ठंडा होता है। और जो जो वार्म करंट्स होती हैं वो जहां से गुजरती हैं उसके ऊपर से जो विंड ब्लो करती है वो उस वार्म करंट की हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और वो नियर बाय एरियाज में टेम्परेचर को बढ़ा देती है। आई होप आई एम क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद रिलीफ फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स ऑन दी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। जैसे जो हिली एरियाज होते हैं, आपने देखा होगा वहां पे ठंडा होता है मौसम, है ना। जो प्लेन्स होते हैं वहां पे मौसम गर्म ठंडा, हर तरीके की चीज एक्सपीरियंस की जाती है, हर तरीके के सीजन्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। और जो आपके डेजर्ट एरियाज होते हैं, जो डेजर्ट रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो पाती है, ठीक है।
आपके हिल्स, आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब आपके रिलीफ फीचर्स होते हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. आई होप आई एम क्लियर. Yes. राइट. Yes, ma'am. ये तो हुए क्लाइमेट कंट्रोल्स. अब अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये आप ये समझ लो, ये करना इसलिए जरूरी है बेटा, ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, क्योंकि ये वो चीजें जो आपने अपनी क्लास 6-7 में पढ़ी होंगी, बट अब आप क्योंकि क्लास 9 में आ गए हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से फेड भी हो गई होंगी, है ना. तो जब हम इनको दोबारा से पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे. एंड मोर ओवर, अगर आप क्लास 11th में जाके ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट लेते हो तो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है ये बहुत ज्यादा डीप में आती है. राइट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट. तो सबसे पहले तो जो प्रेशर और विंड है ना, प्रेशर बेल्ट्स और जो विंड सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा जो है इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. इसमें हम कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस पढ़ेंगे. ये सब हमने क्लास 6 में पढ़ा था. अगर आपको याद हो, क्लास 6 में एक चैप्टर था इंडियाज क्लाइमेट. आई थिंक इट वाज द सेकंड लास्ट चैप्टर, मुझे आज भी याद है. तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ये. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. राइट. ठीक है. तो ये कोरियोलिस फोर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस पे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है कोरियोलिस फोर्स. ठीक है. ये कोरियोलिस फोर्स है, इसको हम जो है अदर वर्ड्स में वी कॉल इट एज फेरेल्स लॉ. और ये फेरेल्स लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है या ये जो फेरेल्स लॉ है, इससे हमें ऐसा लगता है बिकॉज हमारी अर्थ रोटेट करती है और विंड्स भी घूम रही हैं, पर क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे इक्वेटर पे के पास आती हैं ये विंड्स, अपनी डायरेक्शन को ये डाइवर्ट कर देती हैं. ऐसा महसूस करते हैं हम कि राइट और लेफ्ट में ये मुड़ जाती हैं, बट ऐसा होता नहीं है. ये रोटेशन की वजह से हम ऐसा फील करते हैं. ठीक है. इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे. फिर इंडिया का जो मॉनसून है, जो इंडियन मॉनसून है, वो कैसे जो है एल नीनो से अफेक्टेड है. ठीक है. एल नीनो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको हम डिटेल में समझाएंगे आपको. ठीक है. फिर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड इट्स विड्रॉल. हमें पता है ये जो भी टाइम पीरियड चल रहा है आपका जून फर्स्ट वीक से इंडिया में मॉनसून की जो है बिगनिंग शुरू हो जाती है. ठीक है. जून फर्स्ट वीक में मई एंड या जून फर्स्ट वीक में द मॉनसून विंड्स दे हिट द केरलन कोस्ट. राइट. केरल कोस्ट को जो है इट हिट्स, एंड देन वहां से फिर धीरे धीरे ये मॉनसून जो है प्रोसीड करके जो है आपका नॉर्थ में आता है, फिर डाइवर्ट होके आपका वापस जाने लगता है. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हम ये सब पढ़ेंगे. उसके बाद किस तरीके से ये सीजन्स, ये जो हमारा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, ट्रांजिशन पीरियड में किस तरीके से मौसम बदलता है. आप देखो, मानसून के बाद एकदम से पतझड़ हो जाता है, पतझड़ से एकदम से फिर बाद में स्प्रिंग आती है मार्च अप्रैल में. बसंत पंचमी सुना है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मानसून के बाद विंटर सीजन आता है, या कोल्ड वेदर कह लो आप. ठीक है. उसके बाद जब कोल्ड वेदर खत्म होता है तो आपका ऑटम, आपका जो है स्प्रिंग सीजन आता है. स्प्रिंग के तुरंत बाद जो है आपका ये स्प्रिंग सीजन जब आता है तो वो आपकी गर्मियों की शुरुआत हो जाती है. राइट क्लास. Yes, ma'am. ठीक है. हम रिट्रीटिंग मानसून पढ़ेंगे, पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीजन, इसको भी हम पढ़ेंगे. रिट्रीटिंग मानसून जो हैं, ये आप जब रिट्रीटिंग मानसून हम कहते हैं लौटते हुए मानसून. जब मानसून नॉर्थ से पूरा ट्रैवल करके जब लौट रहे होते हैं तो ये आपका अक्टूबर नवंबर के टाइम में ये आपका तमिलनाडु कोस्ट पे ये बारिश देते हैं. हमने क्लास 6 में पढ़ा है ये कि किस तरीके से तमिलनाडु में जो है विंटर्स में जब बारिश होती है, हमारे जब पूरे मतलब इंडिया में जब विंटर सीजन चल रहा होता है उस टाइम पे तमिलनाडु में ये रिट्रीटिंग मानसून जो है हिट करते हैं. ठीक है. और किस तरीके से वहां बारिश देते हैं. ठीक. फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे कंट्री में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट एट ऑल सेम. क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिफरेंट है हमारे कंट्री में. कैन यू टेल एनी वन ऑफ यू, क्यों हमारे कंट्री में इतना वेरिएशन है, कहीं ज्यादा बारिश कहीं कम बारिश. संस्कृति. संस्कृति, आर यू देयर. Yes. Also the different region and climate.
रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मोटा कारण आपने क्या बोला पार्थ? रीजन। हाँ, डिफरेंट रीजन। हाँ, इसको हम रिलीफ फीचर्स भी कह सकते हैं। जो हमारे कंट्री का जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं या हमारे कंट्री का जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, ये बहुत हद तक जो है हमारे कंट्री में रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है, अफेक्टेड करता है। राइट राइट क्लास? Yes, ma'am. फाइन। Yes, ma'am. उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे मॉनसून जो है वो एक यूनिफॉर्म बॉन्ड की तरह काम करते हैं, किस तरीके से वो पूरे कंट्री को एक धागे में बांधते हैं। वो अलग बात है कि बरसात सब जगह एक जैसी नहीं होती है, पर फिर भी इट एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड टू एवरीवन। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, ओके मैम। let me share the screen with you all. See, it is showing heavy thunderstorms today. Okay, can you all see the screen? Beta, can you see the screen? Huh? No, No, ma'am. ma'am. Now? No, ma'am. Now? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Not true. चलिए, हमने 1 to 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, 16 to 20 कर लीजिए अगर टाइम ज्यादा, अगर सॉरी 16 to 25 कर लीजिए, टाइम अगर कम है हमारे पास तो। ठीक है? राइट क्लास? Yes, ma'am. Try to do it quick.
up हुआ? Class? Ma'am, just doing. हाँ. I'm done. Done? Send it on the class group.